Welcome back to the channel of Chem Pacific. In this video, I'm going to discuss with you spectral property of metal carbonyls. Before I get started, if you're new to our channel, don't forget to subscribe our channel, and if you like your video, to press the like button. Now, let's get started. So this is a very important and interesting topic that I'm going to discuss with you all, that is the spectral property of metal carbonyls, or the IR spectroscopy. Now, I always say that what chemistry is all about. Always remember, chemistry is an experimental सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे वॉट एवर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, वॉट एवर द डेटाज यू गेट फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स, यू मेक द पोस्टुलेट्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको एक्सपेरिमेंट्स पहले आप परफॉर्म करते हो, वहाँ पे जो आपको डेटाज मिलते हैं अकॉर्डिंगली आप थ्योरीज बनाते हो. But in the case of physics, you first to make the postulates, then you, in order to prove your postulates or the theories, you perform the experiments. ठीक है. तो केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल डेटास एंड एक्सपेरिमेंट्स प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. दैट इज वाई हम हमेशा स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर रिलाई करते हैं. बहुत सारे टाइम आप लोगों ने ज़रूर पढ़ाई तो किए ही होंगे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम बोलते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर्स हम फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं. दैट इज योर इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी. ठीक है. उसका बहुत ही एक छोटा सा सेक्शन है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल डेटाज स्टडी करके हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलते हैं. लेट्स सी हाउ इट इज सो. द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू स्टडी इज द फॉर्मूला nu is equal to 1 by 2 pi c root over k by mu, where k is nothing but the stiffness of the bond, and mu, as you all know, that it is the reduced mass, and mu is equal to this. Now students, यहाँ पे मुझे कुछ information देना है. So as I already showed you that nu is nothing but this is proportional other factor remaining constant. From this equation number 1, you can give this. From this value, you can definitely conclude that if other factors remaining constant, then you can say that the nu is proportional to the stretching frequency and is inversely proportional to root mu. Now, if you can say, in other words, you can also say that ये जो stretching frequency है, if it is proportional to root over k, that is the stiffness of the bond, this is again proportional to the bond order. Now, by formula, you must be knowing that bond order is equal to this. That is, bond order is directly proportional to the number of electrons in the bonding molecule orbital and inversely proportional to the number of electrons in the anti-bonding molecular orbital. ठीक है. तो यहाँ से आप ये भी कंक्लूड कर सकते हो दैट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस with more number of electrons in the antibonding molecular orbital. So this is very important. Now antibonding molecular orbital क्या होता है? is a destabilizing factor जो खुद ही इतना हाई इन एनर्जी है, जो खुद ही खुद को संभाल नहीं पा रहे, तो वो किसी इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एकोमोडेट कर सकते हैं. तो हमेशा याद रखो दैट accumulation of electrons in antibonding orbitals is a destabilizing factor. This is very important. Clear? Is a destabilizing factor. इसका मतलब ये है जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटीबॉन्डिंग में एक्यूमुलेटेड होगा उतना ही डिस्टेबिलाइजिंग फैक्टर है. तो यहाँ पे हम इस चीज़ को अगर और भी स्पेसिफिकली देखेंगे, हम इस चीज़ को ये यहाँ से आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे. मतलब एंटीबॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी एक्यूमुलेटेड होने से ही आपको destabilization होता है. As a result of which what happens, the stretching frequency decreases. Now, when a metal is bonded to a single metal, ठीक है, so when a carbonyl is bonded to a single metal, so this is the difference between the terminal ligand and the bridging ligand.
This is difference between the terminal ligand and the bridging ligand. Okay, so it is clearly visible to us. मैं एकदम simplified form में ले रही हूँ, तो हम उसे और भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे. So this is your terminal ligand. This is your terminal ligand and this is your bridging ligand, which is also denoted by mu2 since it is bonded to two metals. Now यहाँ पे एक information आप लोगों को देना है that stretching frequency के साथ जब हम ये बात कर रहे हैं, हमेशा याद रखो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ सकते. I already discussed in my previous video, to check it out. एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स तब भी आ सकते through pi back bonding. Through pi back bonding. ठीक है, through pi back bonding there is accumulation of electrons in the LUMO, that is the pi star antibonding orbital. ठीक है, so जितना ज़्यादा pi back bonding होता है between the metal and the ligand, उतना ही ज़्यादा electron cloud density accumulated होते हैं to the pi star antibonding orbital. That results to more and more accumulation in the pi star orbital. That results in destabilization. That results in what? That results in destabilization. Clear? Now what happens students? अगर एक कार्बोनिल के वजह से एक कार्बोनिल जब एक ही मेटल के साथ bonded formation होता है, तो एक कार्बोनिल, as because this is your terminal carbonyl, this I already informed is your terminal carbonyls, terminal ligands, तो यहाँ से जब accumulation of electrons हो रहा है, this is due to the metal. Because of this metal they are getting, because of a single metal. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हो रहा है, यहाँ पे एक ही metal से pi back bonding हो रहा है. So from one metal pi back bonding is taking place. Clear? लेकिन when it is in a bridged form, मतलब when a single carbonyl is now, when a single carbonyl is now getting bonded to two metals. Now it is in a bridged form. Now it is simultaneously bonded to two metals. It is very much clear to you. तो फिर more and more amount of electron cloud density will now get accumulated to the pi star antibonding, है ना? As a result of which, what happens? More destabilization will take place. So जितने ज़्यादा metal के साथ bond formation होगा, उतना ही ज़्यादा destabilization. Since यहाँ पे आपको दो metal के साथ हो रहा है, इसलिए इसका destabilization क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे. तो एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगा. अगर ये एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली तीन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो फिर एंटी बॉन्डिंग में और भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी का एक्यूमुलेशन होगा और भी इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएंगे. सो एक्सपेरिमेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट ऑल द वैल्यूज दे हैव ऑलरेडी गिवन एंड लेट अस सी द वैल्यूज. ठीक है, सो दीज आर द एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज एंड दिस गिव्स यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. जो फ्री है उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जो टर्मिनल है उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सेकेंड पॉइंट में जैसे जैसे वो ब्रिज्ड होते जाते हैं वैसे वैसे इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाते हैं. सो दिस इज अ वेरी सिंगल formula. The stretching frequency is inversely proportional to the number of electrons in the antibonding molecular orbital. So as a result of which हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे. As a result of which, due to the accumulation of electrons in the antibonding molecular orbital, the stretching frequency is decreasing. Right? तो दैट इज वाई ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे तो आप सारी चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाओगे. और ये जो डेटाज है, ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, ये हमें बहुत सपोर्ट करते हैं टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर्स. सो बहुत सारे क्लास्टर्स में जब हम पढ़ाई करते हैं वहाँ पे मेटल कार्बोनल्स जितने भी हम पढ़ाई करते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करते हैं. तो मेरे स्टूडेंट्स बहुत टाइम मुझे क्वेश्चन करते हैं, मैडम मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इस स्ट्रक्चर में क्या है कि मैं ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकती हूँ जहाँ पे सारे के सारे मेटल का 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होते हैं. देन मैं एक ही बात कहती हूँ, देखो वही स्ट्रक्चर एक्सेप्टेड होता है जो हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ
एक ही साथ टैली होते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ स्ट्रक्चर्स प्रपोज कर रहे हो, उसमें सारे मेटल्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, थियोरेटिकली वो सही है, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। कहाँ से पता चलेगा? फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। सो दिस वैल्यूज गिव अस हेल्प अस अ लॉट इन elucidating the structures as well. So as promised, I always try to provide the study materials along with my video so that students को सारी चीज एक ही साथ मिल जाए, एक complete information students को मिले. Now let's see. Now यही चीज जो मैंने आपको explain किया, that is written in the note form, वही मैं बोल रही थी. That एक जो CO stretching frequency है, ये पहले जब आप फ्री स्ट्रियो, मतलब ऐसे जब वो मेटल के साथ अभी तक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ है, जो फ्री है, उसका वैल्यू सबसे ज्यादा है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स. वही मेटल, वही कार्बोनिल जब कोई मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, वही कार्बोनिल जब कोई मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, इट रिजल्ट्स इन द पाई बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, द मेटल एंड कार्बन जो है, मेटल एंड कार्बन का जो बॉन्ड ऑर्डर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हो रहा है एक ही चीज, बट देयर आर टू कॉन्सिक्वेंसेस. अगर पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी ऑन द CO विल इंक्रीज इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दैट द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द ऑक्सीजन विल डिक्रीज, बट the bond between the metal and the carbon will increase. So ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है. पहले ऐसे bond formation हो रहा था, ठीक है, you can see, ठीक है, after pi back bonding, after this pi back bonding, ध्यान से देखो, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये इंक्रीज हो जाते हैं और ये डिक्रीज हो जाते हैं. आफ्टर पाई बैक बॉन्डिंग दिस वैल्यू इंक्रीजेस and this value decreases. ठीक है, this is decreases and this value increases. ठीक है, this is very important. तो वही चीज मैंने एक्सप्लेन किया है. As a result of which the carbon and the metal and the carbon bond order, what happen, it increases, and the carbon and the oxygen bond order, it decreases from triple to the double. क्लियर? सो आई होप ये सिंपल से टॉपिक है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो गया. नाउ यहाँ पे जब पाई बैक बॉन्डिंग हो रहा है, मतलब देयर आर सर्टेन थिंग्स, मतलब एक हो रहा है डोनर और एक हो रहा है सो एक मेटल से एक लिगैंड जो है कार्बोनिल, यहाँ पे आपका पाई बैक बॉन्डिंग हो रहा है. तो ये गिव एंड टेक का जो रिलेशन है, ये तब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जब मेटल जो है, दिस मेटल्स बिकम्स रिच, द मेटल्स बिकम रिच एंड द लिगैंड, यहाँ पे जो लिगैंड है आपका कार्बोनिल, दिस लिगैंड बिकम्स नीडी और हंग्री. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये रिलेशन जो है गिव एंड टेक का, ये तभी वो रिलेशन उतना अच्छा होगा जब जो दे रहा है, the one who is donor, that metal has to be rich in what? The metal has to be rich in electrons, है ना? The metal has to be rich in electrons, है ना? And the ligand has to be hungry. It must have some requirement for the electrons. तो ये जो क्राइटेरिया जब सेटिस्फाइड होगा तब पाई बैक बॉन्डिंग बहुत ही अच्छे से होगा. ये क्राइटेरिया कब सेटिस्फाई होगा, कब मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा? Obviously when the metal is नेगेटिव इन चार्ज. सो जितना ज्यादा मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही आपका स्ट्रॉन्गर पाई बैक बॉन्डिंग होगा. ठीक है, सो पाई बैक बॉन्डिंग जितना ज्यादा होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम हो जाएंगे. बिकॉज आई ऑलरेडी डिस्कस विथ यू दैट द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दैट टू बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो ये इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा इस चीज को फॉर्मूला आपके दिमाग में हो जाना चाहिए. यू शुड ऑलवेज बी रेडी विद दिस फॉर्मूला, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे. तो फर्स्ट पॉइंट हो गया द नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटल. क्लियर? नेक्स्ट जो है प्रेजेंस ऑफ द अदर लिगैंड. सो मेटल के साथ जो बाकी, ऐसा नहीं है कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर देखते हो तो वो कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे कि मेटल के साथ दूसरे लिगैंड्स भी
कोऑर्डिनेटेड होते हैं। वो लिगैंड का जो नेचर है, वो लिगैंड के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है दैट ये जो पाई बैक बॉन्डिंग का जो रिलेशन है वो कैसे होगा। तो वो जो मेटल है उस मेटल में आपका सिग्मा डोनर लिगैंड हो सकता है एंड पाई एक्सेप्टर लिगैंड। सो नेचर ऑफ द लिगैंड बेसिकली एक बार हम इसके बारे में भी समझ लेते हैं। नेचर ऑफ द लिगैंड्स, पॉइंट नंबर 1 एक है सिग्मा डोनर। सो सिग्मा डोनर लिगैंड्स क्या होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिसके पास ओनली 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया, ठीक है, which are possessing in only 1 lone pair of electrons, या pyridine, ठीक है, they possess 1 lone pair of electrons, they act as a sigma donor ligand. And then you have the sigma donor and the pi donor ligand. ये कब होता है? जब वो लिगैंड के पास एक से ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। फॉर एग्जांपल हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, this of type of ligands, they are having more than 1 lone pair of electrons, so they are defined as sigma donor, pi donor ligands. And then you have the last but not the least is the sigma donor and pi acceptor ligands. तो ये कौन से कैटेगरी में है? यहाँ पे along with a lone pair of electrons which is actually getting engaged in the sigma bond formation, there must be one acceptor, maybe, so there must be one acceptor, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के साथ कोई एक्सेप्टेंस प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्टर कैसे कैसे हो सकते हैं, थोड़ा सा हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी हमने CO बॉन्ड में देखा है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ LUMO, लोएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वेयर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटीगोनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल pi star is acting as the lone pair acceptor through pi bond from the metal। और एक्सेप्टर कभी कभी द पाई बॉन्ड जो है, the pi star anti bond, यहाँ पे the bond itself is acting as the acceptor। और कभी कभी in the case of atoms like phosphorus या sulfur, so they possess the lone pair of electrons and also an vacant d orbital, ठीक है। तो एक्सेप्टर ये तीनों में कोई भी फॉर्म में हो सकता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन यू से दिस इस कैटेगरी को हम कहते हैं सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। क्लियर? सो यहाँ पे मैं वही बताना चाहती हूँ दैट अगर कोई मेटल के साथ कोई दूसरा जो लिगैंड होते हैं अपार्ट फ्रॉम द कार्बोनिल, वो अगर सिग्मा डोनर लिगैंड होगा लाइक अमोनिया एंड pyridine, and why is it sigma donor? Because they possess only 1 lone pair of electrons that results in the increase of electron density on the metal। मतलब अब उन्होंने मेटल को इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिच होने से ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगा, और जब भी ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगा तब भी क्या हो जाएंगे, तब भी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? एंड अगर उस मेटल के साथ दूसरा जो लिगैंड है, उस लिगैंड का नेचर अगर पाई एक्सेप्टिंग नेचर है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हाट हैपेंस, दैट विल डिक्रीज द पाई बैक बॉन्डिंग एंड इंक्रीज द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। क्लियर? बिकॉज अगर कोई मेटल के साथ अपार्ट फ्रॉम अगर कोई मेटल के यहाँ पे कार्बोनिल है, सो वी विल ऑलवेज टॉक अबाउट द लिगैंड इफ दिस लिगैंड इज सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगैंड। डिफरेंट जो है उसके बारे में हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो भी इफेक्ट होता है वो इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसके ट्रांसपोजिशन में जो रहेंगे उसका ही होता है, ठीक है। तो what happens if this ligand is again sigma donor pi acceptor ligand, then it will withdraw maximum of electron cloud density towards itself।
then it will withdraw maximum of electron cloud density towards itself. तो अगर वो ले लेंगे तो मेटल उतना रिच नहीं बनेंगे, सो क्या हो जाएंगे, देयर विल बी लो अमाउंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग. ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग. जब पाई बैक बॉन्डिंग कम हो जाएंगे तब स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन विल इंक्रीज, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी-बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. So due to less pi back bonding, less number of electron cloud density will get accumulated at the anti-bonding molecular orbital. So let's end the video over here. I hope you like it. So if you like your video, to press the like button. That encourages us a lot to make a more and more informative video for you all. Thank you for watching our video.